Good morning, students. Yesterday we have learned about right angle and straight angle. This is a right angle, this is a straight angle. Today we shall learn about some more angles. So first one is acute angle. An angle smaller than a right angle. Smaller than a right angle is called an acute angle. An angle which is smaller than a right angle, then it is called an acute angle. Here you can see this is an acute angle. This is an acute angle. Okay. Now obtuse angle. If an angle is larger than a right angle and but less than a straight angle, then it is an obtuse angle. Means right angle से greater but straight angle से less हो, तो कौन सा एंगल होगा हमारा? ऑब्ट्यूस एंगल. नाउ नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल. If an angle is larger than a straight angle, if an angle is larger than a straight angle but less than a complete angle. Yesterday we have learned about complete angle. A complete angle means 360 degree or a complete revolution. A complete revolution means a complete angle. एक एंगल जो स्ट्रेट एंगल से तो बड़ा हो लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटा हो, देन इट इज एन रिफ्लेक्स एंगल. दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल. Okay, here we have some examples. So this is an acute angle because it is smaller than 90 degree, that means right angle. You all know that measurement of right angle is 90 degree and measurement of straight angle is 180 degree. So acute angle होने के लिए क्या होगा कि 90 से कैसा हो? लेस हो. ओके. So 62 degree is less than 90 degree. So this is an acute angle. अभी आप इसको देख सकते हैं. And this is right angle exactly 90 degree. This is an obtuse angle. More than 90 degree. More than 90 degree. Sorry. More than 90 degree but less than 180 डिग्री. 180 डिग्री से तो कम है बट 90 से बड़ा है, देन इट इज़ अ ऑब्ट्यूस एंगल. स्ट्रेट एंगल मीन्स एग्जैक्टली 180 डिग्री. नाउ दिस इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 से आगे निकल जाए लेकिन 360 से कम रहे. More than 180 degree but less than 360 degree. So this is an reflex angle. And finally this is complete angle. Exercise 5.3. Before starting exercise 5.3, I want to revise some more things. Right angle means revolution is 1/4. रिवॉल्यूशन इज 1/4. 1/4 होता था तो कौन सा एंगल होता था? 90 डिग्री एंगल और राइट एंगल. यू रिमेंबर दैट? कैसे आता था ये हमारा 1/4? राइट एंगल मेजर्स 90 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. सो इसको जब रिड्यूस करते हैं बाई 10 तो आपको क्या होता है कि जीरो कैंसिल हो जाएगा. देन वी गेट 9/36. आफ्टर दैट बाई द टेबल ऑफ 9 1 जा 9 9 4 जा 36. सो यू हैव 1/4 फ्रैक्शन. सो राइट एंगल के फ्रैक्शन क्या होती थी? 1/4. और एंगल की बात करेंगे, मेजरमेंट की बात करेंगे, देन इट इज़ 90 डिग्री.
सिमिलरली स्ट्रेट एंगल का जो फ्रैक्शन आता था दैट इज 1/2 एंड द मेजरमेंट इज 180 डिग्री. ओके, सो exercise 5.3 question number 1, match the following straight angle. So first one is straight angle. Straight angle means 180 degree, and 180 degree means 1/2 of a revolution. 180 degree means 1/2 of a revolution. Okay, so in C part you can see that half of a revolution. 1/2 को हम लोग हाफ कहते हैं ना, तो चाहे हम इसको 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन लिखें चाहे हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन लिखें, सेम थिंग है. सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज डी. आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज C. Answer of first part is C, half of a revolution. Okay, now second part, right angle. राइट एंगल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 90 डिग्री एंड 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन. मैंने आपको सिखाया है कैसे आता है ये 1/4. 90 डिग्री को 360 से डिवाइड करके, सो 1/4, तो दिस 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल के लिए क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. 1/4 को 1/4 ही पढ़ेंगे हम लोग. सो सेकेंड, आंसर ऑफ सेकेंड इज डी. नाउ थर्ड पार्ट, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होते थे हमारे? जो लेस होते थे, जो स्मॉलर होते हैं राइट एंगल से. अभी राइट एंगल को हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं फ्रैक्शन में? 1/4 है ना, 1/4. तो 90 डिग्री से लेस लिखें, 90 डिग्री से छोटे एंगल हो, या फिर 1/4 रिवॉल्यूशन से छोटे. तो आप लोग देख सकते हैं दिस फर्स्ट लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन. 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन जब वर्ड आता है तब आपके दिमाग में अब 90 डिग्री आता होगा, राइट एंगल आता होगा. लेस देन राइट एंगल, तो क्या होता है लेस देन राइट एंगल? हमारा एक्यूट एंगल होता है. सो थर्ड का आंसर है ए. नेक्स्ट, ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन, नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल से तो ग्रेटर होता है, बस 180 डिग्री से स्मॉलर होता है. ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ओके, तो अभी फिर से वही बात, 90 डिग्री के लिए आप क्या यूज करेंगे? 1/4 एंड 180 डिग्री के लिए 1/2 एज ए फ्रैक्शन. सो in part E you can see that between 1/4 and 1/2 of a revolution. So answer of fourth is part E. Now D part, reflex angle. reflex angle हमारा क्या होता था? an angle which is greater than obtuse angle. An angle which is greater than straight angle. Okay, an angle which is greater than straight angle. Okay, तो स्ट्रेट एंगल, फिर से स्ट्रेट एंगल हमारा क्या होता है? 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन. स्ट्रेट एंगल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन. सो अभी आप यहाँ पे सर्च करेंगे मोर देन हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन. मोर देन हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन मतलब 1/2 से ज़्यादा. तो कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल. तो फिफ्थ का बी. ठीक है, आपको बस एक यही कंसेप्ट याद में रखना है. ये मैं फिर से बता रही हूँ आपको. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंड टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है. इसको जब डिवाइड करेंगे तो 10 की टेबल से कट किया तो 9/36 आया, और फिर 9 की टेबल से कट किया तो 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36. तो राइट एंगल के लिए फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/4. या फिर 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन होता है. ओके, सिमिलरली स्ट्रेट एंगल के लिए आप फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट 1/2. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज फिनिश्ड.